Very good evening, friends. I hope आप धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे इस फिजियो संवाद के तीसरे एपिसोड के साथ। तो मेरे साथ आ जाएंगे डॉक्टर जीशान राइस। जस्ट वेटिंग फॉर हिम। Good evening, everyone. Welcome to the third episode of Physio Samvad. Many physios are starting to join this session. I hope it will be a great session with Zishan. He is my younger brother, so let him join in. Clinic कहाँ है आपका? I have clinic at Narayangarh and Panchkula as well. I spent some time in Panchkula and Narayangarh district, Ambala, Haryana. And Dr. Z has requested to join in. Hello, sir. So Men in Black welcome you all. It's like we are twinning right now because we are brothers. And I heartily welcome Dr. Zishan Reyes. It's a formal welcome, and I am doing it for the very first time in my life that I am formally welcome Dr. Zishan Reyes, the great young lad from Delhi who has created a space for himself in New Delhi and in India. He is creating space for physiotherapy not only in cricket but also golf, and is working with plenty of patients having musculoskeletal disorders. And he's quite famous these days for uploading very relevant content about common musculoskeletal disorders faced by people. So he's trying to propagate physiotherapy in whatever way he can, and he's doing a very wonderful job. So moreover, he is my younger brother. I always have seen him grow. So that is the most important part, that he is my younger brother. Apart from it, his own achievements are for himself, but I am happy that he is my brother. So most of the physios, I guess, will be benefited from the session that we are going to have. The whole idea of Physio Samvad is to talk with the physiotherapists who have achieved great heights in their profession. And for Zishan Reyes, the success has been always not so easy, but he has worked so hard that no one can deny the place that he has achieved so far. So I welcome you, Dr. Zishan Reyes. It's a pleasure to have you. Thank you for your kind words. Thank you so much. और काफी लोग जुड़ गए हैं. I think बुशरा भी है, जुनैद और काफी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस वक्त. राइट. जीशन, आई ऑलवेज बिलीव जितने भी लोग हों उनको जो भी कंटेंट मिले वो रेलेवेंट कंटेंट हो, जो मेरा टॉपिक हो, जिसके बारे में हम बात करना चाहें, वो एक्चुअल में फिजियोज को, फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स को, क्लिनिशियंस को, जो भी हम बात कर रहे हो वो रेलेवेंट हो और उनको हेल्प करे. एंड आई वेलकम ऑल द व्यूअर्स और लिसनर्स जो भी हैं हमारे इस टॉक शो के, बिकॉज आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, हमारे को सुन रहे हो, तो हमारी भी ये कोशिश है कि हम आपको बिल्कुल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. तो आज का जो हमारा टॉपिक है जीशन, that is the sports physiotherapy. Zishan is masters in sports and is working with Indian golf team, and he is also working with the Delhi cricket team under 19, under 16, under 14, and even few matches of Ranji as well. He is the head physio at the fitness hub. तो बहुत लंबी प्रोफाइल है ये. मैं कल भी बता रहा था, जीशन से मजाक कर रहा था कि मेरे डिजाइनर को वो पोस्टर के अंदर प्रोफाइल फिट करने में अभी बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी. तो अंडर 14, 15, 19 को हमने एक ही लाइन में जगह दी. बट इट्स नॉट इजी टू अचीव सक्सेस. बट जीशान,
स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी द सिल्वर लाइनिंग, जो हमारा टॉपिक है आज. Why did you pick this topic? What's the silver lining? Can you explain the whole concept कि आज का टॉपिक हमारा किस तरफ जाने वाला है? बेसिकली सर Hello, जैसा आपने Anu. She's हाँ joined in one of the physio is joined in from New Zealand. मतलब हम इंटरनेशनल रीच रख रहे हैं भाई. तो welcome all, welcome once again, Physio Nazim, and there are so many people who comment में नाम आता रहता है, and it's a great thing to have you all. Hi Devaj, he's even under 19 boys are with us now. अंडर 19 क्रिकेटर्स, ये क्रिकेटर्स और जो स्पोर्ट्स पर्सन और फिजियो का जो रिलेशन है, इट्स लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. Absolutely. They are dependent upon us and we are dependent upon them because we both get recognition as a physio. I'll not talk much अभी because it's your show. तो मेरे को बात करने का बहुत शौक है जीशन, और स्पेशली व्हेन इट्स माय टीम, माय फैमिली इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं बहुत बात करता हूँ. लेकिन आज ये तेरा शो है भाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट एक्सप्लेन कि ये टॉपिक, व्हाई डिड यू गिव मी दिस टॉपिक के स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी द सिल्वर लाइनिंग, व्हाट डज इट मीन? बेसिकली स्पोर्ट्स फिजियो की अगर हम बात करें या स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी या स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की हम बात करें, तो सिल्वर लाइनिंग का बेसिकली जो क्रस्ट जो मीनिंग निकलता है, अगर हम देखें कि मोस्टली जो सोसाइटी में या जो हेल्थ केयर प्रोफेशन में अगर हम बात करें, जो हमारा फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी का जो स्टेटस है या जो रिकॉग्निशन एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो आई थिंक वो उतना स्टैब्लिश्ड अभी तक नहीं है. आई मीन इट इज बेटर. पहले से पिछले 10 सालों में काफी कुछ चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें बताना पड़ता है लोगों को कि हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं या हम ये काम कर रहे हैं, हम इस हॉस्पिटल में या हमारी ये जगह है, या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की हम बात करें, तो लोगों को हमें बताना पड़ता है. एक्चुअली बार बार हमें ये चीज बोलनी पड़ती है कि शायद मतलब कि हम भी इंटीग्रल पार्ट है, हम भी इस चीज के बहुत हेल्थ केयर प्रोफेशन के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. Right. तो वो एक स्ट्रगल. और दूसरे एंड पे स्पोर्ट्स है. तो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो स्पोर्ट्स में हमें बताना नहीं पड़ता कि या रिकॉग्निशन के लिए हमें चिल्लाना नहीं पड़ता, या हमें मतलब क्राउड में हाथ ऊपर करके नहीं बोलना पड़ता कि हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, या हमारा ये काम है, हम ये करते हैं. क्योंकि स्पोर्ट्स पर्संस के साथ या स्पोर्ट्स में हमारा इतना इंपॉर्टेंस है. मैं ये मानता हूँ कि जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है स्पोर्ट्स में, इनफैक्ट हम सभी देख रहे हैं कि जैसा आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि ये हस्बैंड वाइफ का जैसे आपने एग्जांपल दिया, ये बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल है कि एक एथलीट एक फिजियो के बिना मैं मानता हूँ शायद वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि कपिल देव जैसे प्लेयर आजकल नहीं हो सकते. और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक प्लेयर विदाउट इंजरी नहीं रह सकता. मैं ऐसा मानता हूँ अगर एक कॉम्पिटिटिव एथलीट है तो वो बिना इंजरी नहीं रह सकता, और इंजरी जहां पे आएगी तो वहां पे फिजियो का होना बहुत जरूरी है. तो बेसिकली ये जो रिलेशन है, ये दोनों पैरेलल चलती है. अगर एक एथलीट है और एक स्पोर्ट्स फिजियो है, तो ये दोनों चीज पैरेलल साथ साथ चलती है. तो यहाँ पे रिकॉग्निशन के लिए हमें चिल्लाना नहीं पड़ता. तो सिल्वर लाइनिंग का एक पॉइंट ये है जो मैं कुछ हद तक शायद जस्टिफाई कर पाया हूँ. और दूसरा पार्ट है कि हर आदमी चाहता है कि हर प्रोफेशन में, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, हर आदमी को रिकॉग्निशन चाहिए होता है. रिकॉग्निशन के साथ साथ ऑब्वियसली वी नीड मनी ऑल्सो, कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम किसी भी प्रोफेशन में है, तो रिकॉग्निशन और पैसा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे ब्रेड एंड बटर के लिए बहुत जरूरी है हमारे लिए. तो स्पोर्ट्स में मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली जो एक हॉस्पिटल में जो हमारा फिजिकल थेरेपी चलता है या जो हमारा क्लिनिक्स में चलता है, और जो एक हमारा स्पोर्ट्स फील्ड है, चाहे हम ऑर्थो की बात करें या न्यूरो की बात करें, अगर बाकी सारे फील्ड से अगर आप कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, और इन टर्म्स ऑफ आई मीन सारे फैक्टर्स हैं, जो फेम की बात करें या आप उस चार्म की बात करें, तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक ही वजह से हुआ है कि जितना स्पोर्ट्स ग्रो करेगा, साथ साथ स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी भी ग्रो करेगा. और हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स और फिटनेस फील्ड जो है, ये दोनों काफी अच्छा ग्रो कर रहा है. और ये अभी तो इनफैक्ट अभी प्लेटू पे पहुंचने में इसको बहुत टाइम लगेगा. इट इज लाइक अभी ये ऊपर ही जा रहा है. इट इज लाइक प्रोग्रेसिव अभी चल रहा है. तो ये अभी काफी ऊपर जाएगा. और दूसरा एडवांटेज है
स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी का, और साथ साथ इनफैक्ट मैं ये कहूंगा फिजिकल थेरेपी का, अगर हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स को साइड करें या फिजिकल की बात करें, तो फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी की बात करें तो उसमें मैं समझता हूँ कि अगले 10 साल 20 साल में इतना ज्यादा चेंज आ जाएगा कि शायद मैंने और आपने अभी तक सोचा नहीं होगा, हमारा दिमाग वहां तक नहीं जाता अभी तक कि अगले 10 या 10-15 सालों में कितना चेंज आने वाला है। आई मीन बाकी प्रोफेशन को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें, डेफिनेटली डेफिनेटली जीशान, अगर हम देखें अभी after this corona, definitely the things are going to change and change for one thing is definitely going to get a hype is the healthcare profession, because people are going to get more aware about the importance of fitness, the importance of sports in our life, the importance of good health. So people are going to invest in this. So we have an opportunity after this pandemic is over, that we as physios provide a platform for all the, not only the sports persons but also the common people, so that they can involve themselves into certain kind of physical activity, and physios have an responsibility to play, important role to play in this. What do you think? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं एक हमें मतलब एक रिकॉग्निशन में एक हद तक मतलब बेनिफिट हुआ है हमें, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशन की, अगर ओवरऑल हम हेल्थ केयर प्रोफेशन की बात करते हैं तो जो इसको मिलना चाहिए अभी तक उस लेवल पे काम नहीं हुआ था। चाहे हम गवर्नमेंट लेवल की बात करें, चाहे हम अपने पर्सनल लेवल की बात करें, लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस उस तरीके से नहीं समझी थी। लोगों को लगता था कि हाँ हेल्थ केयर प्रोफेशन है, जब प्रॉब्लम आएगी तो हम जाएंगे। वो एक आई मीन एक माइंडसेट इस तरीके से लोगों का था। और हमारा इनफैक्ट गवर्नमेंट का भी ऐसा ही था कि स्पोर्ट्स को भी अगर हम कंपेयर करें, स्पोर्ट्स और हेल्थ प्रोफेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद अनड्यू एडवांटेज कुछ हद तक अब स्पोर्ट्स को मिलने लगा है, ऑल्दो जबकि जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशन में मिलना चाहिए, तो कुछ हद तक उसका एडवांटेज यहाँ जा रहा है। तो क्योंकि चीजें भी बैलेंस नहीं है, और इस पैंडेमिक में इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है, जहां पे हेल्थ केयर भी काफी हद तक डेवलप्ड है, काफी हद तक स्पोर्ट्स भी डेवलप्ड है, और उनकी सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, तो ये उन लोगों के लिए भी काफी बड़ा चैलेंज और काफी बड़ा टास्क रहा है मैनेज करना। बट अगर हम अपने इंडिया की बात करें, क्योंकि यहाँ की फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बाकी जगहों से थोड़ा अलग है। हमारे पास एक्सपोजर बहुत है, हमारे पास चीजें काफी कुछ है, बट हमारा सिस्टम थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ लूप होल ऐसा है जो शायद अभी तक ठीक नहीं हो पाया। और इस पैंडेमिक के बाद में मैं ऐसा समझता हूँ कि ये काफी बेहतर होना चाहिए, और काफी बेहतर हुआ है। अभी तक लोगों ने कोशिश करी है, और सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को इंपॉर्टेंस पता चला है, और जो कि एक बहुत बड़ा आई मीन बहुत अच्छी बात है। और दूसरा एडवांटेज मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले हमें लगता था कि सब चीजें जाके ही हो सकती है। आई मीन रीच जो हमारी थी कि फिजिकल कांटेक्ट या फिजिकल रीच की हम बात कर रहे थे, बट अभी यूजिंग टेक्नोलॉजी और भी सारी चीजें जो हैं जिसको हम यूज करके, तो काफी हद तक हम लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं, लोगों को काफी फायदा हो सकता है। चाहे हम फिजिकल थेरेपी की बात करें या किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशन की बात करें हम, तो कुछ हद तक इस पैंडेमिक की वजह से भी हमें कुछ चीजें मालूम चली हैं, कुछ इंपॉर्टेंस पता चला है जो अभी तक शायद हमने रियलाइज नहीं किया था। और आई थिंक हमें इसके तरफ थोड़ा सा और काम करना चाहिए। Right. और So you basically are telling about the concept of tele-rehabilitation that is coming up. राइट राइट राइट, बिकॉज बीच में अभी कुछ क्वेश्चन आए थे कि शायद टेली या कॉल पे, फोन पे कंसल्टेशन मना कर रहे थे, या कंसल्टेशन नहीं होगा, कुछ ऐसे रूल्स और कुछ ऐसे लॉज आए थे। आई थिंक जी। मुझे थोड़ा आ रहा है अब बीच में अब कुछ। उस लॉ को रिव्यू करने की जरूरत पड़ जाएगी आफ्टर कोरोना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रिव्यू करना भी चाहिए, क्योंकि अभी सारे कंसल्टेशन, इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद कहती है कुछ आपको इशू होता है तो यू टॉक टू योर डॉक्टर और टॉक टू योर तो हेल्थ। एक एक और चीज हो गई कि टेली रिहैबिलिटेशन ने हमें फिजियोस को ये बता दिया है कि इलेक्ट्रोथेरेपी जो है वो हमारी प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट कभी नहीं थी, ना कभी होगी। इस बिल्कुल चीज बिल्कुल को रियलाइज करने के लिए इस चीज के बारे में मैं बात भी करता हूँ अक्सर, कि वो जो पैराडाइम शिफ्ट है, वो जो हमारा सोचने का एक तरीका है जिसमें हम सोचते हैं, तो
उस चीज से कहीं ना कहीं उस पैराडाइम से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। एब्सोल्युटली। एक्चुअली सी कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज वाला सिचुएशन जब होता है तो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज वाली चीज जो होती है वो भी एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो आपने बड़ी अच्छी बात बोली, इलेक्ट्रोथेरेपी की बात जो आपने कही है, वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था और कुछ हद तक लोगों को अब समझ में भी आ गया होगा कि हम विदाउट इलेक्ट्रोथेरेपी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि हम विदाउट जंक फूड सर्वाइव कर सकते थे, विदाउट पब्लिक गैदरिंग हम सर्वाइव कर सकते थे, विदाउट बाकी सारी चीजें जो हमारी होती थी उसके बिना हम सर्वाइव कर सकते थे, उसी तरीके से विदाउट इलेक्ट्रोथेरेपी फिजिकल थेरेपी सर्वाइव कर सकता है। फिजिकल थेरेपी, एक्चुअल फिजिकल थेरेपी का जो मीनिंग है लोगों को शायद अब मालूम चल रहा है, एक्चुअल एक्सरसाइज का मीनिंग अब लोगों को पता चल रहा है। राइट। और बीच तो में सर, बीच में जैसा कि आप लोगों से काफी कुछ सीखा, जैसे बीच में मैनुअल थेरेपी का ट्रेंड आ गया था। जैसे पहले इलेक्ट्रो, क्योंकि ये टाइम फेजेज है, मैं समझता हूँ कि हर डिकेड में एक चेंज आ रहा है, एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो पहले इलेक्ट्रोथेरेपी का खूब बूम था, लेजर आ रहा था, शॉकवेव थेरेपी, सारे एक्सपेंसिव डिवाइसेस मशीन्स आ रही थी जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे। कोई यूएस से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहता है मैं जर्मन मशीन यूज करता हूँ, कोई कहता है मैं इंडियन यूज कर रहा हूँ। तो पहले मशीन्स का कंपटीशन था और ट्रीटमेंट थ्रू, मोस्टली ट्रीटमेंट जो डिलीवर हो रहा था वो मोडालिटीज के थ्रू हो रहा था, मशीन्स के थ्रू हो रहा था। और बीच में फिर एक फेज आया जब मैंने फिजिकल थेरेपी पढ़ना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मैनुअल थेरेपी का बूम आना शुरू हुआ। तो सारा चीज होता था कि मैनुअल मैनुअल, फिर सब बोलते थे कि मैनुअल थेरेपी के नाम से कुछ भी बिक जाता था। अगर हम अपने प्रोफेशन की बात करें, मैनुअल थेरेपी जहां पे आपने नाम दे दिया तो वहां पे वो चीज अच्छी हो जाती है, चाहे अंदर कुछ भी हो। अगर मैंने पोस्टर में मैनुअल थेरेपी डाल दिया तो मैं शायद मेरे में भी क्लिक करेगा, हाँ यार मैनुअल थेरेपी, कुछ सीखने को मिले, कुछ मैनुअल होगा, कुछ अच्छा होगा। तो जी, अभी मैनुअल मैनुअल के बाद में अगला चीज आया तो मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स आ गए। अब स्पोर्ट्स के नाम से चीजें इस तरीके से चल रही है, आप स्पोर्ट्स का नाम डाल दो, उसके अंदर क्या है। तो थोड़ा सा ये चीजें जो है चेंजेस तो जो मैं देखो आ रहा हूँ। अभी जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है जीशान, वो ये है कि वर्ल्ड में जो सबसे पहले इलेक्ट्रोथेरेपी को तो नकार दिया गया है। बहुत सारे मेटा एनालिसिस हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी डिवाइसेस को बहुत कोई ज्यादा तरजीह नहीं दी गई है, एंड दे आर डिक्लाइंड। और उसका यूज ऑल ओवर ग्लोबली जो है वो काफी कम हो गया है, रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, बहुत कम लेवल पे हो गया है। सेकेंड वाज द फेज जिसकी तू बात कर रहा है, मैनुअल थेरेपी की। डेफिनेटली उसके कुछ एविडेंसेस हैं, मॉडरेट एविडेंस जो है वो अवेलेबल है कि वो इफेक्टिव हो सकती है। एंड द लास्ट थिंग जो अभी आ रही है, अभी जो कमिंग अप इज द पेन एजुकेशन। जो पेन एजुकेशन है उससे रिलेटेड। बट इन सारी चीजों के साथ, इन सारे पैराडाइम्स के साथ, इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजियोज टू कीप ऑन चेंजिंग एंड कीप ऑन एनहांसिंग देयर प्रैक्टिसेस। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, अगर पहले हम बात करते थे, डार्विनियन जो थ्योरी है दैट सेज कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। राइट। लेकिन कोरोना के बाद जो हो गया है अब, ये सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट। दोज हु विल चेंज क्विकली विल सर्वाइव। तो जो जो भी फिजियोज हैं जो नए मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे, अब वो डार्विनियन की जो थ्योरी है, फिटेस्ट की जो थ्योरी है, उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। और सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट, वी हैव टू फाइंड आवर वेज टू रीच पीपल, to reach the society, and tell society how we as physio can be beneficial in the changing times. तो एक चीज फॉर श्योर रही है, और उस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो है एक्सरसाइजेस। चाहे वो इलेक्ट्रोथेरेपी का युग हो, चाहे वो मैनुअल थेरेपी का टाइम हो, चाहे वो पेन एजुकेशन की बात हो, उसमें एक चीज जो कांस्टेंट रही है, द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जो डब्ल्यू में अंडरटेकर की तरह है, वो है एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं सर यही जो मैंने थोड़ा इवेल्युएट किया है, जो मैं जब कॉलेज में था, बीपीटी फर्स्ट ईयर से लेके मास्टर्स के टाइम तक, उसके बाद जब प्रैक्टिस में आया, और इनफैक्ट उसके बीच में भी जब प्रैक्टिस कर रहा था, मैं जब टीम के साथ था या कहीं भी मैं काम करता था, मैंने एक चीज देखा है कि लोग जो है, जो हमारे फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम जैसे स्टूडेंट, जो कल हम स्टूडेंट थे, तो उस टाइम भी हमारे साथ ये था कि हम, हमारे दिमाग में भी यही चलता था कि हम नई टेक्निक्स कैसे सीखे और नई चीजें कैसे सीखे। बट इतनी सारी चीजें जब मैंने एक्सपीरियंस किया, चाहे आप मैनुअल थेरेपी की बात करते हैं, चाहे आपने मैनिपुलेशन सिखाया हम सबको, चाहे हम स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजों की बात करते हैं, या फिर हम किसी और भी टेक्निक की बात करते हैं, चाहे हम ड्राई नीडलिंग की बात करते हैं, मुझे लगता है कि टेक्निक्स के पीछे हम अगर
तभी हमें भागना चाहिए, और टेक्निक्स के लिए हमें मेंटली तब हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमें अब अलग अलग टेक्निक्स या अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को हमें तब पकड़ना चाहिए जब हमारा कोर जो है, जो बेस है, जो कि मुझे लगता है कि शायद मैं भी कहीं ना कहीं लैक करता था। और जो कोर था, अगर मैं नीडलिंग सीखने जा रहा हूं तो वहां भी एनाटॉमी की बात हो रही है, मैं आपसे मैनिपुलेशन सीखने आ रहा हूँ, आप भी एनाटॉमी की, आप बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हो, आप एनाटॉमी सिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारा रूट वही है और हम लोग रूट को नहीं पकड़ रहे हैं। हमें क्या लग रहा है कि नहीं, हमें कुछ नया टेक्निक सीखना चाहिए, अरे हमें आईएसटीएम वाला सीखना चाहिए हमें। अब आईएसटीएम के लिए भी आपकी सर्विस एनाटॉमी अच्छी होनी चाहिए, एग्जांपल है, या बायोमैकेनिक्स आपकी अच्छी होगी तो मैनिपुलेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। टेक्निक तो आप सिखा देंगे, कॉन्सेप्ट तो हमें ग्रैब करना है, टेक्निक तो हम राइट। आपसे सीख। बिल्कुल सही कह रहा है जीशन के, अगर बेस स्ट्रांग है तभी उसके ऊपर एक स्ट्रांग बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। तो coming on to the sports aspect again, how and when you thought, why you thought to become a sports physiotherapist? आपने कब डिसाइड किया था? बीपीटी फर्स्ट ईयर में, बीपीटी सेकंड में, थर्ड में, ट्वेल्थ में, एट्थ में, या फिर मास्टर्स सेकंड ईयर करने के बाद स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में डिसाइड कर लिया था कि अब तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ही बनूंगा? When एक्चुअली did you सबसे actually decide to join the sports physiotherapy सबसे as a sports physiotherapist? सबसे पहले हर मेडिकल स्टूडेंट की तरह मेरी भी वही स्टोरी है कि मैंने एग्जाम दिया, मेडिकल का एग्जाम दिया, वो क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने और भी चीज ऑप्शन में रखी। तो इवन मुझे आइडिया नहीं था फिजिकल थेरेपी के बारे में। माय फादर ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि आप फॉर्म में ये ऑप्शंस ऑप्ट कर दो, बीपीटी एंड बीओटी एंड बी फार्मा। तो मैंने ये चीजें अप्लाई कर दिया। देन आई गेव एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें क्लियर हुआ, उसमें नाम आया। तो पता नहीं था क्या होता है फिजिकल थेरेपी। देन ना करते हुए एडमिशन ले लिया, क्योंकि आइडिया कुछ था नहीं, लोगों ने भी मना किया एडमिशन मत लो, बेटर टू गो फॉर बी फार्मा। बट मुझे लगा ठीक है करना चाहिए, मुझे भी आइडिया नहीं था। बट व्हेन आई स्टार्टेड अटेंडिंग माय क्लासेस, तो क्लासेस अटेंड करते टाइम फिर धीरे धीरे फिर कुछ टाइम में मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं ठीक जगह पे हूँ। क्योंकि पेशेंट इंटरेक्शन, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में ही मैंने क्लिनिक पे जाना शुरू किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, या कोई अच्छा एथलीट आ रहा है या कोई इंजरी लेके आ रहा है, इनफैक्ट कोई भी गेम की इंजरी आ रही है, तो वहां से फिर धीरे धीरे। और फिर दूसरा जो स्पोर्ट्स चूज करने का सबसे बड़ा रीजन रहा है, वो आईपीएल को मैं बहुत बड़ा इसका वो देना चाहूंगा। क्योंकि आईपीएल देखते थे उस टाइम भी ये होता था कि मतलब एक फेम और एक चार्म जो था, उस चीज को लेके फिर लगता था कि यार हमारा रोल है, हमारी इम्पोर्ट, क्योंकि हम फिर उस टाइम ढूंढते थे यार फिर हमारी पहचान क्या है, हमारा रोल कहाँ पे है। तो वो ढूंढने की कोशिश करते थे। तो फिर धीरे धीरे मालूम चला कि यार फिजियोथेरेपी का अच्छा रोल है। फिर पता चला कि फिजियोथेरेपी में अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हो स्पोर्ट्स में, तो आपको थोड़ा और एडवांटेज मिल जाएगा। One reason I'll tell that you might have not noticed yourself. तो मैं सबको बता दूं कि जीशन राइस की जो हाइट है वो 6 फुट 3 इंच है, और ही गोज टू जिम डेली। तो ये एक और रीजन है इम्पोर्टेंट कि खुद आदमी जो जिम में जा रहा हो तो स्पोर्ट्स फिजियो से वो कनेक्टेड, वेट लिफ्टिंग से कनेक्टेड। तो मेरे को लगता है ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जीशान। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली स्कूल में थोड़ा बास्केटबॉल भी खेलते थे हम लोग, तो एक वो भी कह सकते हैं आप। मैं क्रिकेट में हूं अभी, लेकिन मैं क्रिकेट कभी अच्छा नहीं खेला हूँ। तो बट बास्केटबॉल खेलता था, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से मैं भी कहीं ना कहीं। क्रिकेट में हूँ, मैं अच्छा क्रिकेट खेलता था। सो इफ यू वांट क्लासेस आई कैन टीच यू हाउ टू प्ले क्रिकेट एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बीसीसीआई के फिजियो से क्रिकेट सीखने को मिले तो। So, Zishan, what are the common sports इंजरीज, और एक पहला पहला कुछ कुछ जो टिक मार्क्स करने हो अगर एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट को, तो किन किन चीजों के ऊपर उसको स्पेशली ध्यान रखनी पड़ेगी? और एक बहुत ही अच्छा शानदार कमेंट आया है कि पर्सनालिटी बहुत अच्छी है जीशन राइस की, और उसके आगे एक लाफिंग इमोजी और 2 बर्निंग साइंस आए हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है। कह सकते हैं ये तो डेस्टिनी। आप ये तो आप ये तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते जीशन राइस। तो बिल्कुल एनीवे, मैं पूछ रहा था कुछ टिक मार्क्स जो हमें करने होते हैं बीइंग अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, आप क्या ध्यान में रखते हो कि ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी को एंटर करना है? सर स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी के लिए देखिए, जहाँ पे अगर नाम और फेम अगर आ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। अगर आप किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़े एसोसिएशन के साथ अगर हम काम कर रहे हैं, और अच्छे एथलीट्स और इनफैक्ट प्रो एथलीट्स की बात करूंगा, जो आपने सवाल बड़ा रेलेवेंट और बड़ा अच्छा सवाल पूछा
कि जहां पे हम प्रो और कॉम्पिटिटिव गेम में आ जाते हैं, तो वहां पे एक बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट कुछ की पॉइंट्स है जो हमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहला हमें अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं कहूंगा, हमें अपना सब्जेक्ट पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स में होने का मतलब है, क्लिनिक पे अगर सपोज एग्जांपल देना चाहूंगा सर, क्लिनिक पे एक पेशेंट आता है, उसको हमने किया, अगर आज हमें कोई चीज समझ में नहीं आई, हमने उसको मैनेज किया, उसको हमने हॉट पैक लगाया, उसको हमने थोड़ा रिलीज किया, थोड़ा स्ट्रेच किया, एक दो एक्सरसाइज करा के उसको घर भेज दिया हमने, तो यहाँ पे तो सर ये चल जाएगा। लेकिन जहां पे आप स्पोर्ट्स में है, तो वहां पे ये चीजें नहीं चल पाएंगी, वहां पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और हम इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा, स्पोर्ट्स में सब्जेक्ट, मैंने आप एक पहली बात बोली कि हमारा सब्जेक्ट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। रीजन उसका ये था कि जो कॉम्पिटेटिव और अच्छे एथलीट्स हैं, उनकी नॉलेज भी काफी हद तक अच्छी होती है, उनको भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है। तो ऑब्वियस ऑब्वियस। वहां पे आप ब्लफ नहीं कर सकते हो सर। तो वहां पे ब्लफ आप नहीं कर सकते हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू बी So स्ट्रांग ऑन you योर। say that you should be strong with your subject, your knowledge, your techniques, and your approach towards the sports person is different because sports person जो है वो already अपनी life में elite जो sports person है, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने सारे फिजियोज से मिल चुका है और इतने सारे अमेजिंग इंटरनेशनल फिजियोज या एक्सपोजर उसको इतना होता है कि अगर आप कुछ भी गलत कर रहे होते हैं तो आप पकड़े जाते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो बिल्कुल दैट सर। इज वन थिंग। और एज अ फिजियो अगर हम बात करें मैच डे की, अगर मैं आपको लेके जाऊं मैच डे पे, तो जब एक फिजियो बस में बैठता है तो और स्टेडियम में पहुंचता है, मैच शुरू होना है आज सपोज 9:30 बजे, तो फिजियोज के क्या टिक मार्क्स होते हैं जो उसको चेक करना होता है, बिकॉज टीम सिलेक्शन का वो टाइम होता है। व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स और व्हाट काइंड ऑफ एन एम यू आर गोइंग विद, और उसमें टीम सिलेक्शन के अंदर फिजियोज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? सर देखिए, टीम सिलेक्शन में तो मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल फिजियो का है। कोच के और सिलेक्टर के बाद अगर किसी का रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, वो फिजियो का है। और सर जैसा आपने कहा कि अगर मैच डे की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे स्क्रीनिंग की बात आती है। स्क्रीनिंग में आप मैच डे पे सारा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं। और अगर आप टीम के साथ पहले से ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक फिजियो से अच्छा शायद एक प्लेयर को कोई नहीं समझ पाएगा। इनफैक्ट कोचेस को भी नहीं पता होगा जितना एक फिजियो को मालूम होता है। राइट। तो तो सर वहां पे कुछ क्वेश्चनिंग, कुछ ऐसे स्क्रीनिंग, हमारा एक अपना अप्रोच होना चाहिए कि हाउ टू, अगर कोई प्लेयर हमसे ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ही वांटेड टू प्ले, उसको मैच खेलना है, लेकिन उसको कोई निगल है, कोई इंजरी है, तो ही विल ट्राई टू उसको छुपाने की कोशिश करेगा ताकि उसको गेम में आना है। तो सर हमें, हमारे अंदर ये, हर एक स्पोर्ट्स फिजियो के अंदर एक ये आई मीन ये ट्रिक कहूंगा या फिर एक स्क्रीनिंग कहूंगा, जो हमें अपना पर्सनल लेवल पे करनी है। एक इसका कोई सेंस ऑफ सस्पिशन हमेशा बना रहना चाहिए कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। यू हैव टू बी ऑन टोज व्हेन इट्स विद द टीम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो वो चीज जो है शायद वो हमें, बिकॉज क्योंकि ऐसे मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं, वो भी मैं शेयर करूंगा आपसे अभी, कि इनफैक्ट काफी मैचेस में मैंने ऐसा देखा। तो वहां पे कहीं ना कहीं फिर एट द एंड जब मैच डे पे सिलेक्शन की बात आती है, सिलेक्शन से पहले कुछ मिसहैपनिंग होती है या कुछ भी होता है, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, वो आता है फिजियोथेरेपिस्ट पे। तो वहां पे किसी की सुनवाई नहीं होगी, वहां पे सीधा सवाल आपसे होगा और आपको ही जवाब देना पड़ेगा। तो राइट। वो जिम्मेदारी के लिए, उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैच डे पे अगर हमें कुछ पता चलता है और हम कहते हैं कि नहीं यार हम तो चिल्ते, हमें पता ही नहीं था किसी को इंजरी है या कुछ ऐसा है, तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है सर। राइट। तो तो जीशन, अब हम कुछ लेते हैं स्पेशली टेक्निक्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। इससे मेरे को लगता है कि हमने जो अभी तक कॉन्वर्सेशन की है उससे लोगों को पता चला होगा कि वाई स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी इज अ सिल्वर लाइनिंग, और क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की, और कुछ आपके बारे में पता चला है। और मैच डे पे ये इतना आसान काम नहीं है। तो अगर हमने बहुत सारी सिल्वर लाइनिंग की बात कर ली है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इज इट ऑल गुड अबाउट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, या कुछ सेक्रीफाइसेस भी हैं जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट को करने पड़ते हैं? सर देखिए, सेक्रीफाइसेस तो काफी हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कोई हॉलीडे नहीं होता है, या कोई संडे मंडे नहीं होता है, या फिर कोई ड्यूटी आवर्स नहीं होते हैं सर। क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, चाहे कोई भी वेदर हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आपकी तबीयत ठीक है, आप थके हुए हो,
या फिर आप कैसा फील कर रहे हो, ये चीजें आपको एक साइड रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपके साथ 20 लोग हैं, टीम मेंबर्स हैं, 15 प्लेयर्स हैं, 4-5 सपोर्ट स्टाफ है, तो सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एडवांटेज के साथ साथ ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाकी हमें अपनी चीजें एक And साइड। you cannot ignore the travel part, the traveling that is involved. नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उस ट्रैवल के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना बड़ा जरूरी है। सबसे बड़ा पहला डिसएडवांटेज ये है कि घर छोड़ना पड़ता है, उसके लिए कोई टाइम नहीं है सर, कोई छुट्टी नहीं है, कोई वर्क आवर नहीं है कि 8 घंटे 9 to 5 जॉब करनी है, 9 to 5 है, उसके बाद घर जाना है। तो आई रिमेम्बर एन इंस्टेंस जब प्लेयर्स रात को 1:30 बजे कई बार फ्लाइट से आते थे, तो हम उस टाइम पे भी जो है मतलब उनको एक बार असेस करते थे, अगले दिन मैच है एंड दैट इज इम्पोर्टेंट प्लेयर, तो रात को 1:30 बजे भी मैं स्क्रीनिंग करी है, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो बिल्कुल सर, यही कुछ चीजें जो है तुझे भी याद होंगी। बिल्कुल सर। तो जो ये लोग समझते हैं कि सब कुछ हरा ही हरा है और सब कुछ बहुत ही अच्छा है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी को लेके, उसमें डेफिनेटली देर इज लॉट ऑफ एफर्ट्स बिहाइंड इट। क्योंकि एज फिजियोज जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें एफर्ट भी उतना ही है जितना उसका नाम है, उसका काम है। तो जीशान इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। और अब हम बात करते हैं जीशान इसके बारे में, जो स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, और जो जैसे हम वी बोथ आर कनेक्टेड विद क्रिकेट। तो अ, एक चीज जो है बड़ी कॉमन होती है स्पोर्ट्स की फील्ड में, वो है मसल क्रैम्प्स। जो क्योंकि हॉट वेदर कंडीशंस में हम खेलते हैं, स्पेशली हॉट ह्यूमिड कंडीशंस, अगर चेन्नई है, साउथ इंडिया है, या नॉर्थ में भी अगर हम हॉट वेदर में खेल रहे हैं, तो मसल क्रैम्प्स जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और हीट स्ट्रोक जो है उससे रिलेटेड जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज व्हाट इज द फिजियोज एडवाइस टुवर्ड्स दोज पेशेंट्स? और अगर ऐसे ही पेशेंट्स अगर हमारे और भी व्यूअर्स हैं वो देखते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, स्पेशली अगर क्रैम्पिंग हो रही है, हीट स्ट्रोक से प्रिवेंट करना है पेशेंट अपने प्लेयर को, तो क्या क्या यूटिलाइज करना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहली चीज है, अगर हम कॉम्पिटिटिव गेम की बात कर रहे हैं, जहां हमें पता है कि अगर हमें मैच खेलना है, हमें गेम खेलना है, तो सबसे पहली चीज मैं कहूंगा प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप पहले ही फेल हो चुके हैं। अगर आपको क्रैम्प वाले सिचुएशन में अगर आप पहुंच गए हैं, तो शायद ये प्लेयर के साथ साथ ये मेरा भी फेलियर हो जाएगा। अगर जी गेम के टाइम पे कुछ ऐसा क्रैम्पिंग सिचुएशन होता है और हमें पता है कि वो वेदर, जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया था गुजरात में हमारा मैच चल रहा था सूरत में, और वेदर इतना ह्यूमिड, ऐसा वेदर था कि इट वाज लाइक ए ड्रेन, मतलब इवन इफ यू स्टैंड फॉर एन आवर, अगर आप 1 घंटे के लिए ग्राउंड पे खड़े होते हैं, इट इज लाइक ड्रेनिंग। और एक प्लेयर विकेट कीपिंग कर रहा है, एक बैटिंग कर रहा है, या एक फील्डिंग कर रहा है, इवन इफ आप 1 घंटा अगर खड़े हो जाए तो वहां पे ऐसा हो जाए कि आप कब गिर जाएंगे, वो ऐसा सिचुएशन था। तो सर कुछ सिचुएशंस है जो शायद आप इवन आफ्टर प्रिपरेशन आप अवॉइड नहीं कर सकते। हमने कोशिश करी थी सर, हमने हाइड्रेट करने की बहुत कोशिश की है। इवन हमने सारे प्लेयर को मैच से पहले हमने हाइड्रेशन की नोटिस दिया, बताया, इलेक्ट्रॉल अवेलेबल कराया, या फास्टनर की आप बात करते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स की हम बात करते हैं, जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक चीजें जो हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन वो चीजें प्रोवाइड करने के बावजूद भी उस सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। और फिर अगर भी वो हो जाता है, अगर किसी प्लेयर को मसल क्रैम्प, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग अ फिजियो विल डू? विल ही स्ट्रेच दैट मसल और लीव? कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं उस मसल क्रैम्पिंग के टाइम पे? सर देखिए, क्रैम्पिंग से पहले मैं एक चीज कहूंगा। अगर सपोज क्रैम्पिंग हो भी जाता है, सबसे पहला चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने लॉन टेनिस में एक्सपीरियंस किया था, मैंने फुटबॉल में एक्सपीरियंस किया, और मैंने क्रिकेट में, ये तीनों गेम का मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्रैम्प, इतना बुरा क्रैम्प हो सकता है। आई मीन शायद मैंने, आपने, या जो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, शायद इन लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि क्रैम्प का पेन कितना बुरा पेन होता है। इट इज सो, आई मीन इट इज सो पेनफुल कि चीखें निकलती है, रोता है, तड़पने वाला सिचुएशन होता है। क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं सर, कि प्लेयर जमीन पे गिर गया है, वो तड़प रहा है, और दूसरी चीज है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आई मीन कुछ नहीं कर सकते का मतलब है, आप स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, इफ यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेच वन मसल, सपोज मैं क्वाड्स को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूं, पता चला हैम्स में आ गया। मैं हैम्स को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूं, पता चला एब्डोमिनल ओब्लिक्स में आ गया। तो ये बहुत ही ज्यादा, जहां पे सिवियर, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं सर, ये
तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी घबराना नहीं है। सबसे पहली चीज जो मैं कहूंगा, टेक्निक पे आता हूँ सर, उससे पहले मैं कहूंगा सबसे पहले फिजियो को घबराना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आपका डायग्नोसिस, आपकी सारी चीजें इतनी स्ट्रांग, इतनी क्विक होनी चाहिए कि आपको पता है कि ये क्रैम्प ही है, ये कुछ और नहीं है। आपने रूल आउट कर लिया ये क्रैम्प है, चाहे वो तड़प रहा है या कुछ कर रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना। अब आते हैं सर टेक्निक पे। अगर टेक्निक की बात करें, सपोज फील्ड पे या ग्राउंड पे कभी ऐसा हो जाता है, तो सबसे पहली चीज है कि जो मेजर मसल इन्वॉल्व हुआ है, सबसे पहला चीज जो है, इमीडिएटली अगर उस मसल को हम लेंथन करने की कोशिश करते हैं इमीडिएटली, क्योंकि अगर हम एक्टिन मायोसिन की बात करें या कॉन्ट्रैक्शंस की हम बात करें, सबसे पहला उसका नॉर्मल लेंथ अगर हम मेंटेन कर देते हैं किसी भी तरीके से, चाहे हम उसको स्ट्रेच कर दें या उसको हम रिलीज करके, चाहे उसको हम ट्रांजिट इस्केमिक कंप्रेशन करके उसको थोड़ा रिलीफ दें, या हम आइसिंग करके कंप्रेशन करें उसको, तो सर सबसे पहला चीज जो है, अगर हम स्ट्रेचिंग करते हैं इमीडिएटली, क्योंकि और दूसरा चीज हमें ध्यान रखना है, एगोनिस्ट प्लस एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट के साथ साथ एट द सेम टाइम आपको एंटागोनिस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, पता चला एगोनिस्ट को आप कर रहे हो, एंटागोनिस्ट क्रैम्प में आ गया, पता चला वो पलट गया उल्टा, प्लेयर की हालत और खराब हो गई। जी। तो स्ट्रेचिंग के साथ साथ दूसरा जो है आइसिंग। तो ये दो चीज मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट जो मैंने अभी तक इससे ट्रीट किया है और जो मैनेज करी है, क्रैम्पिंग वाला एक्सट्रीम एक्सट्रीम क्रैम्पिंग सिचुएशन जो मैनेज हुआ है, वो आइसिंग और स्ट्रेचिंग के थ्रू हुआ। और मसल कभी क्रैम्प के साथ जीचान एक चीज और लिंक्ड है। सम ऑफ द प्लेयर्स आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू दिस। वो उनको, वो कोई भी कंडीशन हो, किसी भी तरह से हो, उनके कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि मसल क्रैम्प होने की जो चांसेस हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। तो स्पेशली उन प्लेयर्स के अंदर हमें रेजिलियंस जो है वो बिल्डअप करनी पड़ती है। तो लेकिन सर, एक चीज और हम बात कर रहे थे, जो अभी एक क्वेश्चन आया था हमारे पास ऑन स्क्रीन था, वो कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इज टेपिंग। हाउ डू यू सी दैट? टेपिंग के क्या रिजल्ट्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, या क्या नुकसान है, वो सब कुछ आप बताइए हमें। सर टेपिंग की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की अगर जहां हम बात करते हैं, तो टेपिंग एक पहला टूल निकल के आता है सामने। और इत्तेफाक की बात है, अभी मेरे हाथ में एक बॉक्स ही पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एक अगर एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की आप बात करें, तो आपको घर पे भी टेप मिलेगा, क्लिनिक में भी टेप मिलेगा, हर जगह आपको टेप ही टेप मिलेगा। तो सबसे पहली चीज है कि टेप में भी वेराइटी है काफी, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग चीजें हम यूज करते हैं। टेप में मेरा जो फेथ है, मेरा पर्सनल जो फेथ है, वो रिजिड टेप पे मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ। लोग काइनेटिक टेप की बातें ज्यादा करते हैं क्योंकि वो ज्यादा कलरफुल होता है, वो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, तो वो लोगों को लगता है कि काइनेसियो का बहुत एडवांटेज है। बट मैं पर्सनली जो मानता हूँ, मैं एक रिजिड टेप का फैन हूँ। मैं रिजिड टेपिंग की ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से मैचेस हमारे बचाता है, जिस तरीके से हमें सपोर्ट करता है ड्यूरिंग द गेम, वो हमारा बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि यूजुअली कुछ ऐसी तो इंजरीज आती है जहाँ पे कोई टेपिंग हमें हेल्प नहीं करता, लेकिन वहां पे रिजिड टेप हमें सेव कर लेट मी देता है। टेल यू, जो रिजिड टेपिंग जिन्होंने वर्ल्ड में फेमस करी, शी इज माय टीचर, जेनी मैकनल। हाँ मेरे को, आई एम लकी कि मैं उनसे सीख पाया। और जी जी डेफिनेटली बिल्कुल। टेपिंग इज वन ऑफ द थिंग, इवन इफ सम ऑफ द स्टडीज से कि ये प्लेसिबो है या कुछ भी है, बट मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि प्लेसिबोज डू वर्क। प्रोप्रियोसेप्टिव जो फीलिंग है, जो प्लेयर को पता चलता है कि उसका एंकल सिक्योर्ड है, एंड दैट इज व्हाट ऑल ऑफ द स्पोर्ट फिजियोज नो। जब उनको पता होता है कि उनके प्लेयर को आपने टेप कर दिया, तो भैया मतलब जो प्लेयर्स हैं वो मुझे बोलते थे कि सौराब सर प्लीज ये मेरा एंकल टेप कर दो, मेरे को विश्वास सा हो जाता है कि मैं बॉलिंग करूंगा तो मेरे इंजरी नहीं होगी। तो ये जो फीलिंग है, ये जो गट फीलिंग होती है किसी एक प्लेयर की, तो दैट इज समथिंग जो कि उसके परफॉर्मेंस में फिर हिंड्रेंस नहीं बनता है, या फिर उसका दिमाग जो है उसका डाइवर्ट रहेगा कि मेरा जो एंकल है वो अनसिक्योर्ड है। तो डेफिनेटली ये बहुत यूजफुल टेक्निक है जो टेपिंग रिलेटेड है। सो सर एक पोस्ट मैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पोर्ट्स फिजियो। सपोज 90 ओवर का एक टेस्ट मैच हुआ है आज, तो व्हाट इज द पोस्ट मैच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पोर्ट्स फिजियो? अच्छा सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जैसे आपने रिजिड टेप की हमने अभी थोड़ी बात करी है, रिजिड टेप में मैं अभी हाल फिलहाल एक हमारे फास्ट बॉलर है नवदीप सैनी, जो इंडिया खेल रहे हैं अभी। जी। तो नवदीप सैनी ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो सर उनके साथ हुआ क्या कि
जब वो इंडिया ये मैच खेल के आए तो उन्होंने दिल्ली रणजी एक मैच खेला था लास्ट ईयर। तो उस टाइम पे उनसे जब बात हुई तो मैं वहां पे था, तो टेपिंग की बात हुई तो उन्होंने कहा एंकल टेप कर दो। तो जब मैं उनसे बात करने लगा तो मैंने उनसे पूछा, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा बताया कि एक उनको कॉन्फिडेंस सा हो जाता है। तो एक फास्ट बॉलर इवन आफ्टर इतना स्ट्रेंथ, इतना स्टेबिलिटी होने के बावजूद भी अगर वो कहता है कि Even after hitting the 145 to 150 speeds. मतलब इस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट है 150 की अगर पेस किसी की है, और वो प्लेयर अगर कहता है कि भैया मुझे टेपिंग कर दो और मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा, तो मतलब मैं समझ पाता हूँ कि एक अगर जूनियर क्रिकेटर की बात करें तो शायद उसको प्लेसिबो हो सकता है। लेकिन अगर इनकी अगर एक हम कॉम्पिटिटिव एक इंडियन प्लेयर की बात करें, इंडियन क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें, अगर इंडियन टीम का एक प्लेयर अगर इस तरीके से टेपिंग के बारे में बोलता है तो शायद वो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी काफी बिल्डअप हो जाता है कि हाँ इसका एडवांटेज है या इसका ये हेल्पफुल है। चाहे हम एंकल Definitely. मार्केट टेपिंग की बात करें, If हम किसी something is perceived as positive, it will have a positive impact. डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अभी एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टेक्निक्स ऑफ अ स्पोर्ट्स फिजियो? तो आप इसका आंसर दीजिए, फिर थोड़ा सा मैं भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत ही स्पोर्ट्स फिजियो मैं भी करता हूँ। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टेक्निक्स, जीशान? इम्पोर्टेंट टेक्निक्स में मैं सबसे पहला सॉरी। मैनेजमेंट को ही एक इम्पोर्टेंट टूल और टेक्निक समझता हूँ। तो सबसे पहली चीज है कि आपका असेसमेंट, आपका एग्जामिनेशन बहुत ही क्विक और बहुत ही शार्प होना चाहिए। कि अगर आपने किसी का मूवमेंट देखा कि अगर फॉरवर्ड फ्लेक्शन में किसी का पेन आ रहा है या किसी का रोटेशन में पेन आ रहा है, तो आपका असेसमेंट इतना अच्छा, इतना शार्प होना चाहिए कि आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ यार शायद मे बी ये एग्जांपल हो सकता है, या मे बी लिवेटर कहीं ज्यादा फायर तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं ट्रैप ज्यादा फायर कर रहा है इस वजह से शोल्डर में पेन आ रहा है। तो हमारा पहली चीज है, मैं हर फिजियो को बोलूंगा, चाहे आप स्पोर्ट्स फिजियो हो या कोई भी हो, और स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स फिजियो हो, तो आपका असेसमेंट इतना सॉलिड होना चाहिए और इतना क्विक, जैसे कहते हैं ना बाज वाली आंखें होनी चाहिए। अगर ये है तो हम स्पोर्ट्स फिजियो को हम हर तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओके। ये है, दूसरा है कि हमारा हमारा सरफेस एनाटमी जो है, सरफेस एनाटमी हमारी काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरा सुप्रास्पाइनेटिस में पेन आ रहा है, या किसी को मैं देख रहा हूं कि सुप्रास्पाइनेटिस में पेन आ रहा है, या किसी मसल की अगर हम बात करें, तो हमारी सरफेस एनाटमी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर मुझे पेक्स माइनर की बात करनी है तो मुझे कहां से अप्रोच करना है ताकि मैं पेक्टोरल माइनर पे पहुंच जाऊं, मेजर के लिए मुझे कौन सा मूवमेंट करना चाहिए। तो बेसिकली सरफेस मार्किंग होती है। और तीसरी चीज जो मैंने आपसे सीखी थी वो ये कि टिश्यू टेंशन सेंस, अगर ये चीज हम डेवलप कर लेते हैं, जो आपने ये चीज सिखाई है कि अगर ये सेंस हमने डेवलप कर लिया, और ये हर प्रोफेशनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये सेंस हमारे अंदर आ गया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल बन जाएगा हमारा, ये सेंस हमने डेवलप कर लिया, तो हमारा पैल्पेशन, हमारा सरफेस एनाटमी, हमारा मायोफेशियल रिलीज, हमारी टेपिंग, हमारी नीडलिंग, सारा चीज जो है कवर अप हो जाएगा सिर्फ एक ही चीज में, वो है हमारा टिश्यू टेंशन सेंस, जो हमने हाथों से सीखा था, जो आपने सिखाया था हमें कि ये अगर हमने सीख लिया तो शायद बाकी सारी चीजें हमारी वैसी कवर अप हो जाएंगी। हाउ टू मैनेज अ फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन ड्यूरिंग मैच? कैन प्लेयर रिटर्न टू फील्ड? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। अगर ग्रेड 1 है, इवन ग्रेड 2 जो है, उन प्लेयर को भी हम वापस गेम में लेके आ सकते हैं। क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना है कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, क्योंकि ड्यूरिंग द गेम हम मैच देख रहे होते हैं, तो इंजरी होती है तो कहीं ना कहीं हम मेकआउट कर, यहाँ पे हम हमारा इमेज बन गया कि हाँ वो ट्विस्ट हुआ या ऐसे गिरा, तो हमें पता चल गया कि हाँ अगर ऐसे गिरा तो शायद ये स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकता है। तो एक तो डेफिनेटली। हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एथलीट से हमें पूछना है बिफोर एग्जामिनेशन वी नीड टू आस्क एथलीट, प्लेयर से हमें पूछना पड़ेगा कि किस तरीके से हुआ, बिकॉज ही नोज बेस्ट, उसको अच्छे से पता है। तो वो एक प्लेयर ने हमें बता दिया, अब फिर हमने क्विक अपना असेसमेंट किया। लाइक कुछ गेम्स में हमें बहुत कम टाइम मिलता है असेसमेंट के लिए, इवन क्रिकेट में भी हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो डेफिनेटली। क्विकली असेस किया, असेस करके अगर हमें लग रहा है, और हमने प्लेयर्स, ये देखिए अब यहाँ पे सर एक प्लेयर और एक फिजियो का रिलेशन आता है। अगर मुझे पता है, मैंने उससे पूछा कॉन्फिडेंटली कि तू मैच खेल पाएगा, अगर वो कहता है कि हाँ सर मैं खेल लूंगा, तो फिर मैं भी कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। और लेकिन ये कॉन्फिडेंस पहले से जब हमारा बिल्डअप होगा, ये तभी हो सकता है। तो आप ये बोल रहे हो कि आप एक स्पोर्ट फिजियो, एक इफेक्टिव स्पोर्ट फिजियो तभी बन सकते हो जब आपकी अच्छी रेपो होगी अपनी टीम में, और उसमें बिल्कुल हैंड्स ऑफ टेक्निक्स जो हैं
कॉग्निटिव फंक्शनल थेरेपी है, चाहे योर पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द गेम है, चाहे योर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, हाउ यू डिलीवर योर मैसेजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज हम बात करते हैं हाउ टू कैरी योर सेल्फ एज फिजियोस, तो ये सब कुछ चीजें सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है, कैन सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन द टिश्यू टेंशन सेंस? अब ये सौराब सर का मास्टरी है, ये सौराब सर बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। टिश्यू टेंशन सेंस जो है वो एक ऐसी सेंस है जो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाती है विद रेगुलर पाल्पेशन। अगर आप किसी ह्यूमन बॉडी को टच कर रहे हैं, व्हेन यू टच अ ह्यूमन बॉडी, तो आपकी फिंगर्स जो हैं अंडरनीथ, ये जो फिंगर्स हैं, ये जो एक चीज है, ये क्वांटिफाई नहीं कर सकते हम इस चीज को, इस सेंस को हम इसको देख नहीं सकते कि किस में कितनी सेंस है। बट इट्स द इंडिविजुअल एबिलिटी टू असेस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द टेक्सचर्स ऑफ टू डिफरेंट टिश्यूज इन द सेम इंडिविजुअल। अगर कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे स्पाज्म है, तो हाउ कैन यू टेल द पेशेंट, हाउ कैन यू फील इट, इज बाय जस्ट प्रेसिंग इन दैट एरिया एंड कंपेयरिंग इट विद द नॉर्मल एरिया। तो आप जब कंपेयर करते हैं, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स में आप ये कंपेयर करना शुरू करते हैं उनके पेनफुल और नॉन पेनफुल एरियाज को, तब आप समझने लगते हैं कि ये जो एरिया है, दिस इज रिएक्टिंग डिफरेंटली फ्रॉम द एरिया दैट इज नॉट पेनफुल। तो ये जो सेंस है, इसी को हम टिश्यू टेंशन सेंस बोलते हैं। और ये मैनुअल थेरेपी के लिए, या फिजिकल थेरेपी के लिए, या स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के लिए, या किसी भी तरह की फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसीलिए पाल्पेशन के ऊपर, एनाटॉमी के ऊपर डॉक्टर जीशन भी बार बार बोलते हैं, और मैं भी अपनी क्लासेस में बहुत बार बोलता हूँ, बहुत बार इसके ऊपर हम एम्फोसाइज करते हैं कि यू टच एंड पाल्पेट योर पेशेंट, बिकॉज इससे जो आपके हाथों में जनरेट होती है ये सेंस, दैट इज वंडरफुल। तो इसी को हम टिश्यू टेंशन सेंस बोलते हैं। कैन यू इलेबोरेट एनी टेक्निक एक्सेप्ट द असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस? कोई भी एक टेक्निक जो आप बताना चाहें, जैसे कि आप, अगर मैं आपको बोलूं, since I am the moderator and I am lucky one to have such a great physio with me, so we talk of shoulder injuries. आप बहुत ही एक्सक्लूसिव काम करते हैं शोल्डर इंजरीज में, और बॉलर्स के अंदर हम डेफिनेटली देखते हैं कि जीशान शोल्डर रिलेटेड इश्यूज जो हैं फास्ट बॉलर्स के साथ आते हैं। और तो उसमें हम कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लिगामेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि वन वन इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस, सपोज दिस इज द केस, और अभी उसका एमआरआई हुआ है, आपके पास उसकी रिपोर्ट आई है, और नाउ यू हैव टू प्लान द होल रिहैब। तो आप किस तरह से अप्रोच करेंगे इस केस को, क्या टेक्निक्स होंगी, किस तरह से आप उसका रिहैब जनरेट करेंगे? बिकॉज बहुत सारे केसेस हैं, वी हैव एन नंबर ऑफ केसेस, देयर इज अ लॉट 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 टू डिस्कस। लेकिन सपोज जस्ट वन थिंग, सुप्रास्पाइनेटस जो मसल है उसके टेंडनाइटिस है, ये आपको एमआरआई रिपोर्ट से पता चल गया, अब वो प्लेयर आपके पास है, नाउ व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू? सर जैसा आपने बड़ा अच्छा एक केस मुझे दिया है, तो केस की बात अगर मैं करता हूँ, इनफैक्ट सी सर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि हर आदमी टेक्निक की बात करता है, तो टेक्निक की भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट टेक्निक, आप खाली टेक्निक की बात मत कीजिए, आप हॉलिस्टिक अप्रोच की बात कीजिए। हॉलिस्टिक जहां आप बात करेंगे, हॉलिस्टिक में हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। हॉलिस्टिक इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू एनी सिंगल टेक्निक। और अगर हम अब बात करते हैं ये आपने जो सुप्रास्पाइनेटस की बात करी है, तो सर इसमें सबसे पहला मैं जो मेरा अप्रोच होगा, जो मैं टेक्निक इनफैक्ट यूज करूंगा जो आप कह रहे हैं, तो सबसे पहला तो मैं रूट कॉज ढूंढूंगा। रूट कॉज में क्या है, यूजुअली होता क्या है, इम्पिंजमेंट या सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस जब डेवलप होता है एक फास्ट बॉलर में, तो होता क्या है सर कि जो उसका बॉलिंग आर्म होता है, जिस आर्म से वो बॉल डालता है, चाहे वो लेफ्ट आर्म है या राइट आर्म है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मसल इम्बैलेंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो हमारे पोस्टीरियर चेन है, अगर हम अपने स्कैपुला की बात कर रहे हैं, अगर आपके शोल्डर ग्लिनोहेमुरल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका स्कैपुलोथोरैसिक गड़बड़ है, आपका जी रूट ये है। तो मोस्टली केसेस में आप ये देखेंगे। और सर फिजिकल थेरेपी में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम किसी पेशेंट का कपड़ा
शर्ट उतार के नहीं देखते हैं, तो इसीलिए हमें कभी पता ही नहीं चलता कि उसका स्कैपुलोथोरेसिक इन्वॉल्व है या उसका जो पोस्टीरियर चेन इन्वॉल्व है। तो सबसे राइट। पहली चीज, फिर घूम फिर के फिर स्टोरी घूम के सर कहाँ पे आ गई, फिर घूम के आगे असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन पे आ गई। तो मैं तो अगर कहूंगा, आपकी अगर असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तभी आप उसके ऊपर कोई भी टेक्निक लगाने लायक होगे। क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज आ जाती है कि अगर आप क्लासिफाई नहीं करोगे रूट कॉज को, इज इट द न्यूरल कॉज, इज इट द बोनी कॉज, इज इट द मस्कुलर कॉज, इज इट द फेशिया, इज इट द लिगामेंट, इज इट द टेंडन, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, जब तक आप उसको क्लासिफाई नहीं करोगे तो आप ट्रीट कैसे करोगे। तो सर। टेक्निक्स जो ये आपने बहुत बिल्कुल सही बात बोली, और आई विल रीइटरेट दिस थॉट कि अगर आप अनड्यू फोकस लगाएंगे टेक्निक्स के ऊपर, first is the first thing important is to assess and observe what is going on in a patient. तो अगर आपको वो चीज क्लियर नहीं हो रही है, अगर हम उस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, तो आप जितनी मर्जी टेक्निक लगा लीजिए, जो रूट कॉज है वो समटाइम्स इट विल बी जस्ट लाइक हिटिंग इन द डार्क। वो ब्लाइंडली किसी भी चीज को निशाना लगाने वाली बात है। एक्चुअली सर मोस्टली होता ही यही है कि हम अंधेरे में ही तीर चला रहे होते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है सर, लेकिन एथलीट्स के साथ हम लोग पकड़े जाते हैं इसलिए कि अगर सपोज मैंने एक टेक्निक अप्लाई किया, मैंने उनके साथ में सीरियक्स की एक टेक्निक अप्लाई कर दी, मैंने सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने एक पर्टिकुलर टेंडन को सॉफ्ट टिश्यू रिलीज किया, जैसे ये टेक्निक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कर दिया सपोज, ये एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट की एक स्पेसिफिक टेक्निक है, मैंने ये अप्लाई किया, उनका पेन शॉर्ट टर्म के लिए पेन तो ठीक हुआ, लेकिन जी द मोमेंट उन्होंने बॉलिंग करना शुरू किया उनका पेन वापस आ गया। जी तो यहाँ पे सर मैं एक टेक्निक यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक बनाऊंगा पैकेज, एक हॉलिस्टिक अप्रोच बनाऊंगा। और हॉलिस्टिक अप्रोच में करूंगा क्या सर, पहले मैंने असेसमेंट किया, असेसमेंट में मैंने उनका सारा शोल्डर कॉम्प्लेक्स देखा, एसी जॉइंट भी देखा हमने, हमने स्टेनोक्लेविकुलर देखा, एसी से देख के हमने स्कैपुलोथोरेसिक देखा, हमने कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व कर लिया, असेस कर लिया, मूवमेंट चेक कर लिया। अब सर हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन की, जो आपने बताया कि टेंडनाइटिस है, यानी कि ये डेवलप हो चुका है। अगर ये जी डेवलप हो गया है या डेवलप होने वाला है, तो मैं सबसे पहली चीज बोलूंगा कि आप इसमें क्रायोथेरेपी या आइसिंग कीजिए। जी आपने किया, आइसिंग से हमारा इन्फ्लेमेशन कम हुआ। आइसिंग इज नॉट द सोल्यूशन, आइसिंग से इन्फ्लेमेशन तो हमने कम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने पोस्टीरियर चेन के लिए हमने WIT या हमने कोई पोस्टीरियर चेन एक्सरसाइजेस, हमने उनको एक सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस दिया उनको, सपोज हमने 3 सीरीज उनको बता दिया WIT, 3 सीरीज एक्सरसाइज ही गाइस। सर थोड़ा सा इनको एड्रेस कर देते हैं कि ताकि अप्रोचेस समझ जाए ये लोग। तो हमने डेफिनेटली। हमने आइसिंग किया, आइसिंग से हमने पेन और इन्फ्लेमेशन कम किया। आइसिंग के साथ साथ इवन यू कैन यूज मोडालिटी अगर आपके पास अवेलेबल है, बट स्पोर्ट्स में शायद हमारे पास ये टाइम इतना नहीं है कि हम मोडालिटी के लिए जाएंगे। जी तो हमने क्या, आइसिंग के बाद में हमने पोस्टीरियर चेन को थोड़ा एक्सरसाइज कराया। जी उसके साथ अब हमें लगता है कि जो शोल्डर है, जो प्रॉब्लम था या जो रूट कॉज था कि वो हमारा ग्लिनोह्यूमरल ऐसा है, इसकी वजह से आ रहा है, तो शायद मैं यहाँ पे सर टेक्निक की, टेपिंग की फिर बात करूंगा मैं यहाँ पे। फिर शोल्डर यहाँ पे, रिलोकेशन टेपिंग। हाँ तो यहाँ पे सर मैं, लेकिन यहाँ पे मैं डायनेमिक टेप यूज करूंगा। डायनेमिक टेप इसलिए करूंगा कि अगर मैं रिजिड टेप लगाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं एक फास्ट बॉलर के लिए बैरियर बन सकता है। तो मैं राइट इसका ध्यान रखते हुए मैं उसको टेप करके फिर उसको होल्ड करूंगा। जब उसको होल्ड करूंगा तो कहीं ना कहीं वो उसको एक प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक देगा कि नहीं हमें यहीं पे रखना है, हमें अपने इसको रिपोजिशन करना है कहीं ना कहीं। एक्सरसाइज ने उसको बता दिया, मोटर लर्निंग में टाइम लगेगा, मोटर लर्निंग एक दिन में नहीं होगा। जब ये टेपिंग जो है उसको बार बार रिमाइंड करेगा, नहीं यू हैव टू बी ऑन, मतलब आपको सही जगह पे रहना है। तो राइट। ये सर, तो ये यही जो आप आंसर दे रहे हैं कि इट इज अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, ये सारे जितने भी हमारी टेक्निक्स हैं वो एक मैकेनिक के टूल बॉक्स की तरह होती हैं, कि हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिस टूल का जब हमें जरूरत होती है तब हम उसको उठाते हैं और उसको लगा लेते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर ये देखिए, आप भी हमेशा ये बात करते थे कि हमें अपने टूल बॉक्स को तैयार करना है। जैसे कि वैभव ने शायद सवाल पूछा था, टेक्निक की बात करी थी, तो वैभव से मैं यही कहना चाहूंगा कि वैभव हमें अपना एक टूल बॉक्स तैयार करना है, और हमारे टूल बॉक्स का जो मेन डिवाइस होता है, या जो मेन हमारा जो ड्राइवर होता है,
वो मेन ड्राइवर आपको असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन और टिश्यू टेंशन सेंस यही रखना पड़ेगा। हमारा मेन डिवाइस ये है। बाकी टेक्निक क्या है कि आपको कहीं नट बोल्ट यूज करना है तो आपने छोटा यूज कर लिया, कोई आपको बड़ा नट बोल्ट यूज करना है आपने वो उठा के यूज कर लिया। तो आपके टूल बॉक्स में सारी चीजें, सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। राइट। लेकिन एक क्वेश्चन आया है, इफ अ स्पोर्ट्स पर्सन गेट इंजर्ड बट वांट्स टू प्ले, व्हाट आर योर फर्स्ट स्टेप्स? ओके, ये अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मैं अमित नाम है, अमित से ये कहूंगा कि इनफैक्ट हर प्लेयर जो इंजर्ड भी हो जाता है तो वो हमेशा खेलना है, वो कभी मना नहीं करेगा कि मैं नहीं खेलूंगा। वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं खेलूं। और एक स्पोर्ट्स फिजियो की भी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको सपोर्ट करूं और उसको मैं गेम को खिलाऊं या उसको मैं गेम में लेके आऊं। लेकिन लेकिन सर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है कि यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना पड़ता है और वो उसी इंस्टेंटली उसी टाइम पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कहीं अगर हमने इनको मेकअप लगा दिया, मेकअप इन टर्म, मेकअप मेरा कहने का मतलब है कि मैंने टेपिंग कर दिया, मैंने आइसिंग कर दिया, मैंने नीडलिंग कर दिया, मैं इसको मेकअप बोलता हूँ। ड्यूरिंग द गेम अगर किसी को मैच खिलाना है तो मैं इसको मेकअप करके गेम खिला दिया सपोज, लेकिन मेकअप करने के बाद में इसकी इंजरी कहीं बढ़ सकती है। अगर इसकी इंजरी बढ़ सकती है तो मैं एक यंग प्लेयर, एक यंग एथलीट की उसको रिस्क पे नहीं डाल सकता, क्योंकि शायद उसकी मेजर इंजरी हो जाएगी तो उसका करियर, वो एक मैच नहीं खेलेगा लेकिन वो अगला सीजन, पूरा सीजन खेल सकता है, अगले कुछ मैचेस खेल सकता है, लेकिन वो एक मैच उसको खिला के उसका पूरा सीजन खराब कर दूं, ये कहीं की समझदारी नहीं है। तो ये राइट। आपको ये कंसेंट भी प्लेयर से भी लेना पड़ेगा, आपको भी कॉन्फिडेंट देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस पेशेंट लाना पड़ेगा। राइट। तो जीशान, इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूँ कि जैसे जैसे आपने बोला कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड्स को आप कैलकुलेट करते हैं। रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है कि प्लेयर को आप खिला दोगे, और रिस्क नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली यूज टूल्स और आप यू कैन मेक द प्लेयर रेडी। बट अगर रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और रिवॉर्ड्स जो है सिर्फ एक मैच के लिए, अगर आपको लगता है कि प्लेयर को आप खतरे में डाल रहे हो, तो आप किसी भी कीमत पे उस प्लेयर को अलाउ नहीं करते हो। मोर ओवर इसमें हम टीम मैनेजमेंट के साथ भी जो है बहुत क्लोजली कनेक्टेड होता है एक फिजियो। तो इसमें कोचेस और जो स्टेज ऑफ गेम है, कल जैसे सचिन राणा जी थे हमारे साथ, इज एन एक्स आईपीएल प्लेयर। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि अगर लीग मैचेस की स्टेज है, इंपॉर्टेंट मैचेस नहीं है, तो वो प्लेयर नॉर्मल सी निगल को भी अवॉइड करता है। लेकिन अगर कोई मैच फाइनल है सपोज, तो बड़ी अगर इंजरी हो गई है ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द गेम, so it becomes very necessary for a physio to just go out there and help the player in whichever way he can. So depending upon the stage of the game as well, it's all subjective related to that instance. So Zishan, any tip for youngsters how to enter sports, and what is your view, or what is your uh, से विजन अबाउट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी इन इंडिया? बच्चे जो हैं, जो अभी बीपीटी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, या अभी वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, तो क्या आप उनको एडवाइस दोगे किस तरह से वो अप्रोच करें, और वो किस तरह से किसी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? व्हाट आर द थिंग्स? सर इसके लिए मैं सारे जो स्टूडेंट्स हैं मैं सबको ये कहूंगा। इनफैक्ट मेरे पास भी काफी मैसेजेस आते हैं, काफी जो स्टूडेंट्स हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी वो मतलब एक्साइटमेंट रहता है, काफी वो चीज रहती है कि हमें भी स्पोर्ट्स में आना है तो हम किस तरीके से आ सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगा। इनफैक्ट डॉक्टर जुनैद ने कमेंट किया है, एनी सजेशन फॉर अस? डॉक्टर जुनैद को मैं सजेशन दूंगा बाद में। तो सर आप बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग फोकस कीजिए। एक सबसे पहली चीज है, देखिए स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट जो है ये कोई अलग चीज नहीं है, ऑल्दो ये एक स्पेशलाइजेशन है, अलग स्ट्रीम है, जो एक ब्रांच है। आई मीन अलग स्ट्रीम नहीं कहूंगा, ये एक ब्रांच है, हमारा फिजिकल थेरेपी का एक ब्रांच है। तो आप ये मत समझिए कि आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट है तो आप स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट बनने में आपको बहुत मुश्किल होगी या बहुत कुछ होगा। आप भी वही है जो हम है, एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और एक नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट, या एक जो अंडर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट या अंडर ग्रेजुएशन का जो एक जिसने किया है, तो हम वही हैं। आप सिर्फ एक चीज पे फोकस कीजिए, आप अपना
काम अच्छे से कीजिए, आप अपना बेस अच्छा कीजिए, और दूसरा चीज है कि आप चीजों के साथ अपडेटेड रहिए। अगर आपको गेम पसंद है, सपोज आपने कोई गेम चूज किया, अगर गेम चूज किया तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप स्पेसिफिक गेम के लिए काम करना चाहते हैं तो Let Zishan join in. Welcome back, Doc. थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ नेटवर्क इशू आया था। जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं ना, तो समय कैसे पता चल बीत जाता, मुझे तो पता नहीं चलता है। तो अब बताइए कि वो जो हम क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो टिक मार्क्स कौन से हैं, क्या टिक करना होगा एक फिजियो को स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा बनने के लिए, एंड हाउ वन कैन ज्वाइन अ स्पोर्ट्स टीम। सर मैं बहुत ही बेसिक बातें बताऊंगा। इनफैक्ट जो मैंने खुद यही चीजें फॉलो किया है। हर स्टूडेंट को या हर फिजियो को ये लगता है कि हम लोग अच्छी और हाई फाई चीजें सुनना चाहते हैं या अलग अलग नई नई चीजें सुनना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी वो नहीं है, वो फैक्ट वो नहीं है। रियलिटी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि बेस जो होता है, जो हमारा कोर होता है, जो बेसिक, हर चीज सिंपल होती है, हर चीज बेसिक होती है। अगर हमारा बेसिक चीजें अच्छी हैं, चाहे हम पढ़ाई की अपनी बात करें, चाहे हम अपने बेसिक अप्रोच की बात करें, चाहे हम पेशेंट इंटरेक्शन की बात करें, तो अगर हर बेसिक चीज आपकी अच्छी है, आपने ये चीजें किया, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में सिर्फ एक अच्छी चीज चाहिए होती है जो मैं समझता हूँ, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा जरूरी है स्पोर्ट्स फिजियो होने के लिए, और स्पोर्ट्स में इनफैक्ट काम करने के लिए, एथलीट के साथ डील करने के लिए। और थोड़ा बहुत आपको स्पोर्ट्स फिजियो बनने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं स्पोर्ट्स में जहाँ पे थोड़ा सा डील क्विक करना। डिसीजन मेकिंग है। हाँ थोड़ा, और डिसीजन मेकिंग में आप बहुत सॉलिड होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपको राइट। स्पोर्ट्स फिजियो बनना है, अगर स्पोर्ट्स में आपको रहना है, स्पोर्ट्स में आना है आपको, और स्टैब्लिश होना राइट। है, बेसिकली आके जाना है वाला कोई समझदारी नहीं है। अगर आपको स्टैब्लिश होना है, अगर कुछ एक्चुअली करना है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने, अलग अलग स्पोर्ट्स के साथ, अलग अलग एसोसिएशन के साथ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, हमारा बीसीसीआई हो, चाहे किसी भी एसोसिएशन है या किसी भी आप फेडरेशन की आप बात करें, हर एक फेडरेशन का, हर एक गेम का थोड़ा अप्रोच, अपना अपना एक अप्रोच होता है, जो कि कहीं ना कहीं उस गेम में हम जाके सीख सकते हैं। बट मैं सारे स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आप अपना बेसिक पे चिपके रहिए, बेसिक के साथ आप अपना सारा काम कीजिए। और दूसरा चीज आपको करना है, आप सारे गेम को आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपको किसी गेम में जाना है। अगर किसी गेम में जाना है तो आपको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी, आपको उस गेम का पता होना चाहिए। अगर आप फुटबॉल की बात करते हैं, आपको फुटबॉल का एबीसीडी सब कुछ पता होना चाहिए। आप क्रिकेट की बात करते हैं, आपको क्रिकेट में सब कुछ मालूम होना चाहिए। एक तो सबसे पहले चीज गेम की नॉलेज, गेम की अंडरस्टैंडिंग, और उससे पहले जो हमारी अपनी फिजिकल थेरेपी की नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीज है तो आपने आधा काम समझ लो कर लिया। अब बात आती है तीसरा अप्रोच की। अब आपको डायरेक्शन देखना है, आपको अप्रोच देखना है कि इस चैनल में आप किस तरीके से जा सकते हैं। और हर गेम का एक अलग चैनल है। क्रिकेट की हम बात करें या बीसीसीआई की हम बात करें, उसका एक अपना एक अलग स्ट्रगल है, उसका एक अलग चैनल है। या फिर अगर हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी वैकेंसीज आती हैं, तो आपको थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मैं जो लोग स्पोर्ट्स फिजियो में इंटरेस्टेड है, मैं बता दूं उनको, अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काफी वैकेंसीज आई थी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की, और अच्छी पोस्ट पे आई थी, और इनफैक्ट काफी अच्छी सैलरीज आई थी, जो कि यूजुअली एक फिजियो को कभी ऑफर नहीं किया जाता। लेकिन वहां पे सैलरीज इनफैक्ट ऐसा था कि इट वाज लाइक कि 80 to 90,000 इतनी सैलरीज थी वहां पे, मंथली सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। और 9 to 5 जॉब अगर इतनी सैलरी मिलती है तो शायद ये बहुत ही अच्छा है, ऑल्दो वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था। तो मैं यही कहूंगा, आप अपनी चीजों पे स्टिक रहिए, आप अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और प्लस आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। सपोज आजकल जैसे हम
प्राइवेट एसोसिएशंस की बात करें, जैसे हम प्रो कबड्डी की बात कर रहे हैं, तो काफी टीम्स हैं, तो काफी हमारे पास ऑप्शंस हैं। और जो नए फिजियोज आ रहे हैं सर, उनके लिए बड़ा अच्छा ये है कि नए फिजियोज के लिए लोग ऑफर करते हैं, उन नए बच्चों को लोग पकड़ते हैं जो नए एनर्जेटिक फिजियोज हैं, उनको लेना चाहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा काम और ज्यादा एफिशिएंट काम करते हैं वो लोग जो नए नए हैं, तो एफिशिएंसी ज्यादा है और लोग एडवांटेज है कि फील्स सैलरी। अमेजिंग कि अब वो जो लड़का जो जिसको मैं देखता आया हूँ वो थोड़ा बड़ा हो गया और वो बाकी बच्चों को नए नए बच्चे बोलता है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू हैव। कल तक सर, कल तक मैंने वो एक्सपीरियंस किया, आप लोग समझाते, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, जो सबसे सीखा है आप लोगों से, और जो गेम में ड्यूरिंग द गेम सीखा है, जो काम करके सीखा है, तो वो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। It's great to see you grow, Zishan, and thank you so much. Yeah, thank you so much for such a nice in view about this sports physiotherapy. How a sports physiotherapist should think. और आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स के ऊपर फोकस नहीं किया कि आप टेपिंग सीख लो, नीडलिंग सीख लो, ISTM सीख लो तो आप स्पोर्ट्स फिजियो बन जाओगे। You actually gave us the whole picture, जिसमें प्लेयर और फिजियो के रिलेशनशिप के ऊपर आपने बात की, टीम मैनेजमेंट के साथ फिजियोथेरेपिस्ट के आपने बात की, हाउ दिस फिजियोथेरेपी इन इंडिया इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, क्योंकि वो सिल्वर लाइन की तरह हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है और हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अट्रैक्ट कर रही है ये फील्ड। ये सारी चीजें जो है आपने अभी तक हमारे को इस टॉक में बताई। मोर ओवर यू टोल्ड अस अबाउट द होलिस्टिक व्यू ऑफ द थिंग्स, और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने हर किसी को बताई कि जो आपको यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड क्विक इन मेकिंग अ डिसीजन इफ यू आर डीलिंग विद अ स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि आपके लिए प्रायोरिटी उसकी हेल्थ है। तो दिस इज व्हाट आई कैन मेक आउट फ्रॉम योर लेक्चर, और होपफुली हमारे प्लेयर्स भी, सिद्धांत शर्मा इज अ ग्रेट bowler. He had a fantastic season last year with the Delhi. So he's also with us. So it's like our relationship with the boys in the team and the management and ourselves, our knowledge of physiotherapy comprises of sports physiotherapy. And I hope and wish कि जिस तरह से जीशन राइस दिल्ली क्रिकेट में अपना नाम अच्छा करता जा रहा है और हमें प्राउड करवा रहा है, एंड बीइंग द मेंबर ऑफ माय फैमिली, IOM family, and very closely I tell you guys, Zishan Rayas is the first guy who organized my workshop Art of Manipulation, and he is in the core team of AOM, और Emin Hesik sir और मैं और Zishan, we guys were the first founders जो हम आज भी अपनी फैमिली को हम बढ़ा रहे हैं। और thank you all for joining in. Zishan, at last अगर लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क अगर आपने देना हो तो आप क्या दोगे? सर, बड़ी देर से मैं एक सवाल देख रहा हूँ स्क्रीन पे कि वी हैव, सॉरी मैं 1 मिनट के लिए बोलना चाहूंगा इस बारे में भी कि सर, वी हैव लिसन्ड दैट अ प्लेयर ट्रस्ट his coach more than compared to their physio. Is it a belief or you have faced anything like that on field? तो इसका तो मैं ये कहूंगा कि ये डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच कैसा है, आपका रिलेशन कैसा है प्लेयर्स के साथ। अगर आप प्लेयर्स को कॉन्फिडेंटली लेते हो और उनको सीरियसली लेते हो, या प्लेयर्स आपको सीरियसली लेते हैं, और वो तभी होगा जब आपकी नॉलेज और आपका काम बताएगा, क्योंकि एक प्लेयर इमीडिएटली पकड़ लेगा आपको, आप अच्छे हो या नहीं हो। अगर आप अच्छे हो तो वो आपके ऊपर भरोसा करेगा, अगर आप अच्छे नहीं हो या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इनफैक्ट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस आप गेन नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो प्रो है, एक कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहा है, तो वो आपको उस तरीके से शायद रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। तो वो एक स्पोर्ट्स फिजियो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। You have to be very confident. Instead, Zishan, I have seen the opposite happen. कि वो प्लेयर जो है कई बार वो हमें आके अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं और उनको नहीं बताना चाहते वो, बिकॉज सर ये मोस्टली ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा ही है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है कि वो हमसे सारी चीजें बताते हैं और फिर हमें लगता है कि यार नहीं यार, वी हैव टू हेल्प देम। एंड एक्चुअली में एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई इंजर्ड हो गया है उस प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे, बिकॉज उसने कोई गलती नहीं की है इंजर्ड होके, he was putting extra effort into the game to make our team win. अगर वो उस
उस चक्कर में अगर वो इंजर्ड हो भी जाता है तो उसने कोई गलती नहीं की है. इट्स एन इंजरी, एक्सीडेंट एंड इंजरीज कैन हैपन टू एनीवन. तो हमारी एज फिजियोज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको उस चीज से, उस ट्रॉमा से, नॉट ओनली द फिजिकल ट्रॉमा बट द मेंटल ट्रॉमा एंड द टेंशन एंड द फियर ही इज गोइंग थ्रू, बिकॉज उसको डर है कि मेरा सीजन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, उसको डर है कि मेरे मैच में परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसको ये डर है कि मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा नहीं जाऊंगा, एलीट स्पोर्ट्स पर्सन की लिस्ट में, लाइन में मेरा नाम होगा या नहीं होगा. तो ये सारी चीजें जो हैं वो फिजियोज को भी समझनी पड़ेंगी कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली द फिजिकल ट्रॉमा बट द मेंटल मेकअप ऑफ द टीम. फिजियो इज एन इंटेग्रल पार्ट. अपनी टीम को अपबीट मूड में रखना ये हमारी जिम्मेदारी है. रेगुलर कॉन्वर्सेशंस, लाइट कॉन्वर्सेशंस, उनसे बातचीत, उनसे कम्युनिकेशन, ये जो बिल्डअप है टीम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे को लगता है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में. बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने. और सर जैसा आप पूछ रहे थे, कंक्लूड करने की बात कर रहे थे, तो मैं इसको सम अप करूंगा ऐसे. मैं ये सबसे कहूंगा कि सबसे पहले आप फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस लाइए, सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाइए हर चीज में, हर काम में, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी हो. कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज है. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप स्पोर्ट्स फिजियो के, आप कुछ भी कर सकते हैं. तो सबसे बिलीव पहले इन योरसेल्फ. बिलीव इन योरसेल्फ, एग्जैक्टली, ये आपकी बड़ी अच्छी लाइन है, ये भी मुझे याद है. तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने अंदर भरोसा रखो और कॉन्फिडेंस दिखाओ, दिखाना पड़ेगा. अगर आप दिखाओगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये मार्केटिंग का जमाना है. यू हैव टू शो, आपको दिखाना पड़ेगा. वो मैजिक, वो चीजें आपको दिखानी पड़ेगी. जैसे सौरभ सर हमारे दिखाते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं, तो वो चीज बहुत जरूरी है. तो वो चीज उनसे हमें ये भी सीखना है. टेक्निक्स के साथ साथ आप इनसे ये सब चीजें भी सीख सकते हैं कि हाउ टू, चीजों को कैसे ग्रैब करना है, हाउ टू शो. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दिस इज वेरी पॉजिटिव, ये बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है. तो आप अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए. और रही बात स्पोर्ट्स फिजियो की, तो स्पोर्ट्स फिजियो बहुत ईजी है. और कुछ हद तक आप लोग को हेल्प चाहिए तो सौरभ सर है, मैं हूँ, तो डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे. अगर एक चैनल, एक डायरेक्शन अगर मिलता है तो डेफिनेटली अपडेट कर सकते हैं आप सबको. तो जीशान, थैंक यू सो मच यार. मैं अब ये जो लाइव है, आज मैं एक शायरी सुनाऊंगा सिंस माय ब्रदर इज विद मी, और लास्ट में एक शायरी सुनाकर मैं इस लाइव सेशन को खत्म करता हूँ कि सूखे पत्तों की तरह शाख से टूटकर गिर जाने वाले हम नहीं. सूखे पत्तों की तरह शाख से टूटकर गिर जाने वाले हम नहीं. इन आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें. गाइस, बिलीव इन योरसेल्फ. जो आपको लोग डिग्रेड करते हैं उनसे, उनकी बात बिल्कुल मत सुनिए. बिलीव इन योरसेल्फ, हैव द कॉन्फिडेंस, लर्न न्यू स्टफ. और यही चीज जो है वो मेरे को हेल्प की है, वही चीज जो है वो जीशन को हेल्प की है. और जो भी कहीं पे भी, जिस भी स्टेज पे पहुंचा है, वो उसमें बहुत जरूरी है कि उनको बिलीव करना है और राइट डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाने हैं. तो डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस. Thank you so much, Zishan. Thank you once again. Thank you, listeners, for joining in. Take care and have a wonderful evening ahead.